Hello students, so let us start with today lecture. Today we will talk about electric dipole, but before that I have to discuss something which I have not discussed in the previous lecture in the electric field lines specifically. As I have told you, there are some properties of electric field line. They originate from positive charges and they terminate on negative charges, and other properties as you can see in your slides which I have sent you. Sorry, this will go at 90 degree with the surface. There are some more properties about electric field lines, like they cannot penetrate inside the conductor. If you have a conductor and there is a field in which you have kept that conductor, and if there is a field like this, so they cannot penetrate inside the conductor. So what they will do, they will just go on the conductor and they will leave the conductor. Inside the conductor there is no electric field lines, therefore there is no electric field. Okay, but they can penetrate inside an insulator. Okay, if you have put an insulator here, they can go through this like this. So remember this thing, this is very important. And I also want to discuss a numerical problem from your NCERT. As you can see here, it is from NCERT example 1.9. 2-point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 to the power minus 8 coulomb and 10 to the power minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed at 0.1 meter apart. Calculate the electric field at points A, B and C shown in the given figure. So you can go through this example in your NCERT book. This is example 1.9 from chapter 1, and let us discuss it. We have to calculate the electric field due to this system. So let me make the, I hope you can see this figure clearly. So let me make this figure. Okay, so I put it here and let us start with it. So we have two charges, Q1 and Q2 as it is given in your book, plus Q1 and minus Q2, and they are separated by a distance of 0.1 meter, and these two charges are equal in magnitude. That means इनके सिर्फ साइन डिफरेंट है. Q1 की जो वैल्यू है आपकी दी हुई वो 10 to the power minus 8 coulomb है, और Q2 की जो वैल्यू है वो भी इतनी ही है बट विद नेगेटिव साइन 10 to the power minus 8 coulomb है. Their separation is 0.1 meter. So there is no need of conversion, they are already in SI units. And you have 3 points. Point A just in between them, Q1 and Q2. This is your point A. Here you have point B exactly, sorry, it is here at a distance of 0.05 meter from Q1. This is your point B, and you have another point C, exactly at a distance of 0.1 meter from both of these two charges. So as you can see, it will be an equilateral triangle. All sides are same, so it will be an equilateral triangle. So due to these charges, you have to calculate the electric field at point A, B and C. Okay, so there is a simple formula for electric field. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge and the distance of the charge from the point of observation, that is Q upon R square. And if you want to take direction, you have to consider some unit vector R. So we will
we will talk about direction later, because we know from positive charge direction is always outward, and from negative charge direction is always towards the negative charge. Okay, remember this fact. As I have told you in the earlier lectures, the direction of electric field from positive charge, it will be always from outwards from the charge, and from negative charge it will always be towards the negative charge. So because we know these two facts, we will use them and we will not take care about the direction. We just calculate the magnitude and we put the direction later. Okay, so first of all, at point A, as you can see at point A, this point A is between these two charges, Q1 and Q2. Q1 is positive, and since it is exactly in between them, so this distance will be 0.05, and this distance will also be 0.05 meter, because it is between Q1 and Q2, and the distance of Q1 and Q2 is 0.1, so 0.1 divided by 2 will be 0.05. So the distance of point A from charge Q1 is 0.05 meter, and also the distance of point A from charge Q2 is 0.05 meter. And because you have two charges, system of two charges, so both charges will induce or will produce a field on point A. दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर फील्ड होगा. अब चूंकि Q1 पॉजिटिव है, दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो पॉजिटिव से जो फील्ड होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है. तो पॉइंट ए पे इस प्लस की वजह से जो फील्ड होगा, दिट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज. आप इसको देखें ना, ऐसे बाहर की तरफ ही फील्ड लगाएगा इस तरफ. और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो फील्ड आएगा, मान लीजिए वो E2 है, वो चार्ज की तरफ जाएगा ऐसे इनटू द चार्ज, तो ये इसी की तरफ हो जाएगा. So remember, so as you can see, the direction of both electric field, that is electric field due to charge Q1 and electric field due to charge Q2, they are in same direction at point A. So let us calculate E1. What is E1? E1 is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R square. So 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 is to the power 9. Q1 is 10 is to the power minus 8, and R square, it is the distance between these 2 points, Q1 and A, and it is equal to 0.05 meter square. So after solving this, when you will do the square of this, and you will get 5 into 10 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 into 10 स्क्वायर माइनस 4, फिर ऊपर पावर है कुछ, फिर वो कुछ कैंसिल हो जाएगा. सो अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद E1 will be equal to 3.6 into 10 to the power minus 6 Newton per coulomb. Please do this calculation. Sorry, minus 4. Sorry, it will be plus 4. I'm sorry. Similarly, the electric field due to this charge, this Q2, as you can see here, this Q2 at point A, डिस्टेंस तो इसकी भी उतनी ही है, 0.05 है, और इसका चार्ज भी उतना ही है जितना ए का था. आप देखें ना, Q1 का जितना चार्ज है Q2 का भी उतना ही चार्ज है, लेकिन इसका साइन डिफरेंस है. इसका जो साइन है वो माइनस है, और मैंने अभी बताया कि हम जो है पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे. तो चूंकि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी हम साइन के बारे में बॉदर नहीं करेंगे, वो बाद की बात है. तो चार्ज जो हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा E2, दिस विल बी इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R square, और 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. Q2 आपका माइनस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 है, लेकिन मैंने कहा हम जो है साइन नहीं लेंगे, जो कि डायरेक्शन जो है हमने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी. हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, तो यही रहेगा, और डिस्टेंस भी इसकी इतनी है 0.05 स्क्वायर. तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करके 3 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन हो गई. ओके, एज नाउ यू कैन सी एट पॉइंट ए, both the electric field are in the same direction, in this direction. Let this direction is x. ओके, तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की वजह से वो भी एक्स डायरेक्शन में है, और पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q2 की वजह से वो भी एक्स डायरेक्शन में ही है. जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ए पर, EA, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू चार्जेस, E1 प्लस E2, एंड इट विल बी सिंपली 3.6 into 10 to the power 4
plus 3.6 into 10 raised to the power 4. So it will comes about 7.2 into 10 raised to the power plus 4 Newton per coulomb. This is what we have for point A. Now let me redraw this figure. अभी मैं पॉइंट सी की बात नहीं करता हूँ सिर्फ, क्योंकि अब हम पॉइंट बी पर निकालेंगे. तो Q1 आपका ये है, Q2 आपका ये है, और पॉइंट बी आपका यहाँ पर है. इसकी जो डिस्टेंस है वो 0.05 है. ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर है. ओके, पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 की वजह से, जो कि पॉजिटिव है, वो बाहर की तरफ होगा इधर, और Q2 जो कि नेगेटिव है, इसकी वजह से हमेशा डायरेक्शन जो होती है टुवर्ड्स द चार्ज होती है, इस डायरेक्शन में जाएगा जी. तो इस पर जो फील्ड हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, E2 हो जाएगा. अब E1 जो होगा वो Q1 की वजह से होगा, और जो E2 होगा वो Q2 की वजह से होगा. लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देखें, पॉइंट बी से Q1 और Q2 की जो डिस्टेंसेज हैं वो सेम नहीं है. जैसे पहले ऊपर था, पॉइंट ए से दोनों की जो डिस्टेंसेज थी वो 0.05 थी. यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर हमें दोनों का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा. ओके, सो लेट मी कैलकुलेट E1. E1 इज E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1. तो Q1 से पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी है? 0.05 है. तो ये तो पहले की जितना ही आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर एंड 9 इंटू 10 raised to the power 9 एंड Q1 इज 10 raised to the power -8 डिवाइडेड बाई 0.05 स्क्वायर. आप इसको करेंगे तो जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 3.6 इंटू 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम आ गया. लेकिन जो आपका E2 है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 9 इंटू 10 raised to the power 9. चार्ज उस पर भी इतना ही है, लेकिन उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? पॉइंट बी की डिस्टेंस Q2 से कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस है. तो 0.1 ये हो गया और 0.05 ये हो गया. डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 0.15 स्क्वायर. ओके, ये यहाँ पर कैच है इसमें. तो जब आप इसको करेंगे तो इट विल बी अबाउट, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4 इंटू 10 raised to the power 3 न्यूटन पर कूलम. ओके, सो ये हो गया E1, ये हो गया E2. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ इनका जो नेट सम आएगा EB, दैट विल बी E1 माइनस E2. क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब आप एक दूसरे से एग्जैक्टली उल्टे होते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि दोनों का जो रिजल्ट वेक्टर आता है दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है. तो E1 इज व्हाट? 3 इंटू 10 raised to the power 4 माइनस 4 इंटू 10 raised to the power 3. पावर दोनों की डिफरेंट है तो आप इनको ऐसे सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, दोनों की पावर ज़रा सेम कर लीजिए. तो मैं इसको 36 कर लेता हूँ. सो इट विल बी 36 इंटू 10 raised to the power 3 माइनस 4 इंटू 10 raised to the power 3. सो यू विल एंड अप विद 32 इंटू 10 raised to the power 3 न्यूटन पर कूलम. और आप चाहें तो अपनी बुक के हिसाब से आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. अब पॉइंट सी रह गया है हमारा. अब हम सिर्फ पॉइंट सी के बारे में बात करेंगे. ओके, सो पहले की तरफ फिगर बना लेते हैं हम. Q1 है, Q2 है, ये प्लस है, ये माइनस है. यहाँ पर पॉइंट, ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है. यहाँ पर पॉइंट सी है, इसकी डिस्टेंस जो है वो 0.1 है, और इसकी भी जो डिस्टेंस है वो 0.1 है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स विल बी 60 डिग्री. रिमेंबर दिस. सो प्लस की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड टू द चार्ज होता है, तो ये आउटवर्ड हो गया. और Q2 की वजह से इनवर्ड टू द चार्ज होता है, तो ये इनवर्ड का मतलब है ये इधर हो गया E2. दिस एंगल विल बी 120 डिग्री.
ओके, ये 60 हो गया, पूरा 180 होता है ये। दिस इज योर पॉइंट सी। तो यहाँ पर भी E1 जो है पॉइंट सी से Q1 की जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर, पॉइंट सी से Q2 की जो डिस्टेंस है वो भी 0.1 मीटर। तो दोनों की डिस्टेंसेस सेम है, दोनों के चार्जेस भी सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। लेकिन E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ना ही तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, ना ही आप इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इनके लिए क्या करेंगे हम बताएंगे, वेक्टर रूल आपने पढ़ा होगा। तो पहले आप E1 E2 कैलकुलेट कर लीजिए। E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 10⁻⁻8 और R स्क्वायर का मतलब हो गया 0.1 स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस अब कितनी है इस बार, 0.1 स्क्वायर है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं आपकी बुक से देख के लिख देता हूं इसको, इट विल कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस इज योर E1। सिमिलरली E2 भी इतना ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो ये भी आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखना Q2 नेगेटिव साइन के साथ है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, सो वी आर ओमिटिंग द साइन हेयर। 9 इंटू 10⁻⁹, मैग्नीट्यूड इतना ही है इसका भी और डिस्टेंस भी इसकी इतनी ही है। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन per coulomb. Okay, now the angle between E1 and E2 is 120 डिग्री। ओके, आपको याद है जब दो वेक्टर आपके पास होते थे A और B और उनके बीच का एंगल जब थीटा होता था तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे आप, R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। यहाँ पर A की जगह E1 है, B की जगह E2 है। ओके, और इत्तेफाक से A = B बिकॉज E1 = E2 है। आप देखें ऊपर, यहाँ E1 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है और E2 की उतनी ही वैल्यू है, एंड थीटा इज 120 डिग्री। अगर ये क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए कि A B के इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पर E1 E2 के इक्वल है और थीटा 120 हो, तो तब रिजल्टेंट कितना आता है। तो रिजल्टेंट R की जगह मैं E लिख देता हूँ। E at C विल बी इक्वल टू E1² + ET² + 2E1 × E2 × cos 120 डिग्री। ओके, सो इट विल बी E1² + E2² + 2E1 E2 × -1/2 cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। अब बिकॉज E1 = E2 है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, या तो E1 को E2 की टर्म में लिख दीजिए या E2 को E1 की टर्म में लिख दीजिए। तो दिस विल बी E1² + E1² बिकॉज दे आर इक्वल टू E1 × E1 एंड इंटू -1/2। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, सो इट विल बी 2E1² और माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, दिस विल बी -E1²। तो 2E1² - E1² कितना आ गया जी, E1 1E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इट विल बी जस्ट इक्वल टू E1 और E2 बिकॉज E1 और E2 आर सेम। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, हमने इसकी क्या मैग्नीट्यूड कितना निकाला था, इट इज 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस numerica. Okay, I hope you understand, and please ask me if there is any doubt. So the next topic is electric dipole. So what is dipole? Di का मतलब होता है टू, a pole something which is opposite but same, equal in magnitude but अपोजिट इन नेचर, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं।
तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं मैग्नेट के अंदर, उन दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, बट दे आर इन अपोजिट देयर नेचर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब भी ये है कि दो चीज़ होंगी बट वो अपोजिट होंगी। तो यहाँ पर तो चार्ज ही हो सकता है। सो फॉर डाइपोल it is a system of two equal and opposite charges. Remember this, it is a system of two equal and opposite charges. You have two charges q and exactly equal charge minus q, यानी कि अगर ये 1 कूलम का है तो ये भी 1 कूलम का होगा, बट इन अपोजिट साइन। and they should be separated by some small distance. This distance can be x, this distance can be d, this distance can be l, but I am taking it as 2l. Why we are taking is 2l, that will be clear in some derivation, but as you can see you can take any value, so I'm just taking this as equal to l. Okay, so it is a system of two equal and opposite charges which is separated by a small distance. This 2l is very small. In fact, ideal dipole के लिए criteria यही होता है कि charges should be very high, that is charge should go to infinity. It is not equal to infinity, it is going to infinity, and the distance between them is very small, that is it should tend to 0. ये एक ideal dipole के लिए criteria है। आइडियल डाइपोल के लिए ये सवाल आया था इस बार बोर्ड में कि आइडियल डाइपोल क्या होता है। तो आइडियल डाइपोल ऐसे डाइपोल को कहते हैं जिसमें चार्जेस आर वेरी हाई बट देयर सेपरेशन इज वेरी लो। ओके, सो इट इज योर आइडियल डाइपोल। नाउ एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, क्योंकि भाई चार्जेस हैं, अब चार्जेस जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा अभी। तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नेचर जो होगा उसकी सिमेट्री वो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी इसमें। देयर इज वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर एसोसिएटेड विद डाइपोल। फॉर एग्जांपल यू हैव q and you have minus q, two charges separated by a distance 2l. There is a very important quantity which is known as the dipole moment. Electric dipole moment denoted by p, and it is equal to the magnitude of either these two charges. इन दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको साइन नहीं लेना है, वो ले लीजिए, एंड देयर सेपरेशन। ओके, और इन वेक्टर फॉर्म इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट q into 2l। ये याद रखना है आपको। डाइपोल होते क्या है? डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट बट स्मॉल डिस्टेंस। ओके, और आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल इज अ डाइपोल इन विच चार्जेस आर वेरी हाई बट देयर सेपरेशन इज वेरी लो। ये ज़्यादातर यूज होता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जब आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं तो उनमें वही डाइपोल मूवमेंट फॉर्म होते हैं। एंड देयर इज अनदर क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विद डाइपोल, that is dipole moment, electric dipole moment, and that what is that quantity? If you want to calculate the magnitude of that quantity is the magnitude of either these two charges, दोनों में से किसी भी एक चार्ज को ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड एंड देयर सेपरेशन, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है, इसको समझने के लिए एक डाइपोल है, ये डाइपोल है 1 कूलम माइनस 1 कूलम, इक्वल और अपोजिट है, और दे आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम विच इज़ 2l, एंड q की वैल्यू है 1 और 2l है आपका लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका डबल मत कर दीजिएगा 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर ही पूरा 2l के इक्वल है। इनके बीच का सेपरेशन जो है ना, ये सेपरेशन ही पूरा 2l हमने माना है। तो दिस इज योर 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻⁻²। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻²। अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और 2l इज द लेंथ, इसकी हो जाएगी मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। ओके, इसकी जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ जाता है, इससे आउटवर्ड होगा इसके अंदर, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है उसका अपोजिट होता है। अब इस डाइपोल मोमेंट की वजह से, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल। वन इज as you can see in electric field due to a dipole on its axial position,
This is the important. What is axial position? Axial position, let's see. For example, you have a dipole, as you know, equal and opposite charges separated by some distance. Let's say 2L. Now, this is the axis of dipole. For example, this is the x-axis. If you see, if you consider like this, so this is x-axis and this is y-axis. Okay, y-axis is perpendicular to the axis of the dipole. So axial position, it is the point on the axis of the dipole, along the axis of the dipole. यानी कि आप जो है इस एक्सिस पे कहीं पर भी खड़े हो जाइए, इस पूरी एक्सिस पे जो डाइपोल के पैरेलल जो एक्सिस होगी वो उसकी एक्सियल पोजीशन कहलाएगी. जैसे पॉइंट पी मैंने बनाया तो पॉइंट पी इज ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल. सो बेसिकली ये ऐसा होती है जो डाइपोल के पैरेलल जो होती है इसके, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो होती है आप उसको कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन. इक्विटोरियल पोजीशन यानी कि अगर ये पॉइंट पी आपका मान लीजिए यहाँ की जगह यहाँ पर होता, इस यहाँ पर अगर पॉइंट पी होता आपका, तब आप कहते हैं कि पॉइंट पी इज लाई ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल. तो एक्सियल पोजीशन का मतलब ये है कि जो डाइपोल की एक्सिस की पैरेलल हो वो पोजीशन आपकी जो होती है उस पर कोई पोजीशन, कोई पॉइंट उस पर लोकेटेड हो तो आप उसको एक्सियल पोजीशन कहेंगे. और कोई पॉइंट अगर डाइपोल के मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर है, अगर किसी एक्सिस पर लाई करता है तो आप उसको कहेंगे कि ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है. तो हमें पहला डेरिवेशन जो करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन. तो मैं इसके लिए एक डाइपोल कंसीडर करूंगा पहले, माइनस क्यू प्लस क्यू. मैंने मान ली इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है, ये इनका मिड पॉइंट है O. इसका मतलब ये हुआ कि आधा डाइपोल इधर है, हाफ लेंथ इधर, 2L की हाफ कितनी हो जाएगी L, और 2L की हाफ कितनी होगी यहाँ पर L होगी. अब आपको समझ में आया मैंने टोटल लेंथ 2L क्यों मानी थी वहाँ. अगर मैं ये लेंथ टोटल 2L की जगह सिर्फ L एज्यूम करता तो यहाँ पर आपको L/2 और L/2 लेना पड़ता. हालांकि उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट इट विल मेक कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट, अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट यू कैन से. सो आप जो है सेफ साइड खेलिएगा, इस पूरी लेंथ को आप जो है ले लीजिएगा 2L, और इसका मिड पॉइंट जब आप O लेंगे तो O से प्लस Q तक की जो डिस्टेंस होगी वो आधी, यानी कि 2L की हाफ L होगी और आधी L इधर हो जाएगी. अब यहाँ इससे आप एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे. आप मुझे बताइए पॉइंट P कहाँ पर है, एक्सियल पोजीशन पे होगा ये, क्योंकि ये ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ये लाई करता है. अब इस पॉइंट P की डिस्टेंस आप अज्यूम कर लीजिए सेंटर ऑफ द डाइपोल से R है. कितनी डिस्टेंस है इसकी, R है. अब आपको इस पॉइंट P पर इस पूरे सिस्टम की वजह से, जो डाइपोल है आपका, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, इसकी वजह से ये बताना है कि पॉइंट P पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. What will be the magnitude of the electric field at point P due to these 2 charges, or you can say due to this dipole. Obviously इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Q and 2L, ये हम पहले बता चुके हैं आपको. अब इसकी आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका ये, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस किस की वजह से होगा. यहाँ पर 2 चार्जेस हैं, एक प्लस Q और माइनस Q है. प्लस Q की वजह से पॉइंट P पर देख लीजिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और माइनस Q की वजह से देख लीजिए पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. उन दोनों को सम कर दीजिएगा आप, दैट यू विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन आप यहाँ पर O से P तक की डिस्टेंस आपको R पता है, O से प्लस Q तक की डिस्टेंस L है, लेकिन आपको चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस पता लगानी होती है. तो प्लस Q से जो वो डिस्टेंस होगी ये पूरी R होगी, ये इतनी L होगी, तो इट विल बी R माइनस L. इसी तरह से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज माइनस Q, इट इज बेसिकली हाउ मच, O से P तक R है और P से ये एक्स्ट्रा L है, तो इट विल बी R प्लस L. हम ये क्यों पता लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 1/4πε0 चार्ज होता है, और चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के डिस्टेंस को आप R कहते थे नॉर्मली. लेकिन यहाँ पर चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P तक की जो डिस्टेंस है वो R नहीं है, R माइनस L है, और इस चार्ज से माइनस Q से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R प्लस L है. अब डायरेक्शन देखिए ज़रा, प्लस Q की वजह से जो पॉइंट P पर फील्ड होगा, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ होगा,
यू विल गेट E1 इन दिस साइड, और माइनस क्यू की वजह से जो पॉइंट पी पर चार्ज फील्ड होगा, अब आप इसको भूल जाइए कि बीच में कुछ रखा है, आप ये देखिए सिर्फ कि यहाँ पर एक माइनस क्यू का चार्ज और पॉइंट पी है, तो हमेशा जो फील्ड जाता है वो इनवर्स टू द चार्ज जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से होगा वो चार्ज की तरफ E2 होगा। सो हेयर E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू plus Q charge, and E2 is the electric field due to minus Q charge. रिमेंबर दिस, E1 जो है वो प्लस की वजह से है और E2 जो है वो माइनस की वजह से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एज यू कैन सी। तो अब इन दोनों को नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम द वेक्टर्स लो, अगर एंगल 180 होता है तो उनको दोनों का सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। E1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है प्लस क्यू है E1 पे, E1 किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, और डिस्टेंस कितनी है प्लस क्यू से पी तक की, R माइनस एल, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे आप। इसी तरह से E2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इसका कितना है माइनस क्यू है, लेकिन मैंने बताया कि आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो इसका साइन आप छोड़ देंगे, प्लस क्यू ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और क्यू माइनस क्यू से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी आपकी, R प्लस एल स्क्वायर। अब E1 E2 आपको आ गया, E नेट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को सबसेट कर देंगे आप, E1 माइनस E2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो यू विल गेट व्हाट, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन आ सकता है, अंदर आपका क्या बचेगा, 1/R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, अलजेब्रा है सिंपल, ये जो है इनकी जो फ्रैक्शनल का एडिशन होता है, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर हो जाएगी, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर्स की, इंटू R प्लस एल स्क्वायर। ओके, सो जब आप ये वीडियो देखें तो इन स्टेप्स को लिखते चलिएगा साथ साथ। यहाँ के बाद कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी और, E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपने बाहर ले लिया था, और यहाँ पर R प्लस एल स्क्वायर, मैं लास्ट स्टेप को फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे, इंटू R माइनस एल होल स्क्वायर। ओके, इट विल बी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एक्सपेंशन करिए, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है सिंपल, प्लस 2RL, ये आ गया अलग एक ब्रैकेट में, माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, A माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाई R प्लस एल इंटू R माइनस एल, इन दोनों का होल स्क्वायर आप बाहर कर दीजिए, दोनों पे स्क्वायर है ना ये, तो हमने दोनों को उठा के बाहर रख लिया। ये हो गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ज़रा ये ब्रैकेट खोलिएगा आगे वाला, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा R स्क्वायर, सॉरी अगर नहीं दिख रहा था तो अब देख लीजिए, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाई, अब आप देखें यहाँ पर अंदर A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आर है और बी की जगह एल है, इनका भी होल स्क्वायर था बाहर पहले से, तो मैंने उसको एज इट इज रख दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 2RL प्लस 2RL, ये हो जाएगा आपका 4RL। आपका यहाँ पर क्या बचा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ज़रा आप देखें कि डिनोमिनेटर में क्या है, R स्क्वायर और एल स्क्वायर, अगर आपको याद हो कि डाइपोल इस तरह का था, प्लस क्यू था, सॉरी चलिए ऐसे मान लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन 2L, और यहाँ पर एक पॉइंट P था आपका जिसकी डिस्टेंस जो थी हमने R ली थी।
आप यहाँ से देख सकते हैं कि R इज मच मच ग्रेटर देन L होता है हमेशा। R जो होता है, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डाइपोल के बाहर होता है, वो इसके खुद के लेंथ से बहुत बहुत बड़ा होता है, कई ऑर्डर में बड़ा होता है। तो सिंस R इज मच मच ग्रेटर देन L, तो इसका मतलब ये है कि R स्क्वायर तो इससे और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ जब छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ यू कैन निगलेक्ट L स्क्वायर इन कंपेरिजन ऑफ R स्क्वायर। यहाँ पर मत कर देना, अगर इसको भी निगलेक्ट कर दिया फिर तो जीरो हो जाएगा, फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं है इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो आप जो है सिर्फ इसको यहाँ पर L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपेरिजन में निगलेक्ट कर देंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो कितना बचा, 1/4πε0। Q को मैं इसके साथ ले जा रहा हूँ, Q इंटू 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। L स्क्वायर को तो आपने निगलेक्ट कर दिया का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4πε0 Q इंटू 4RL अपॉन R⁴। R स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ना, यहाँ R है तो नीचे क्यूब रह जाएगा, तो ये क्या बचा 1/4πε0 Q इंटू 4L डिवाइडेड बाई R⁵। अगर आप इसको चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं अरेंज करके, 1/4πε0 2 इंटू Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई R⁵। देखा ना, ये 4L था, यहाँ पर 4L था, तो मैंने इसको 2 इंटू 2L कर दिया, तो 4L अभी भी है ये, लेकिन Q इंटू 2L को मैंने डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया हुआ है, सिंस वी नो दैट P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। तो मैं इसको Q इंटू 2L को किससे रिप्लेस कर दूंगा, P से रिप्लेस कर दूंगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R⁵। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इन दोनों पे आप वेक्टर लगा दीजिए, जो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होता है वो होता है 1/4π ट्वाइस ऑफ P डिवाइडेड बाई द R⁵। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, एज यू रिमेंबर, ये सेंटर से डिस्टेंस होती है O से P तक की। ओके, एंड वन मोर थिंग, पॉइंट P जो मैंने लिया था अभी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक चार्ज यहाँ पर है, माइनस Q इधर है, प्लस Q इधर है, और पॉइंट P आई हैव कंसिडर्ड एंड इन द राइट ऑफ द डाइपोल। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हो, ये पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, R+L, ये आपका O हो जाएगा। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सियल पोजीशन कहलाती है अलोंग द लाइन ऑफ द डाइपोल। ओके, तो इस पर चाहे लेफ्ट में रखें या आप राइट में रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही आएंगे। तो ई एक्सियल हमने निकाल लिया है। अगला जो डेरिवेशन डाइपोल से रिलेटेड होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लेट मी राइट इट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल on its equatorial position। इक्वेटोरियल पोजीशन मैंने क्या बताई थी कि डाइपोल जो होगा, मान लीजिए ये डाइपोल है, पहले वाला है डाइपोल, मान लीजिए ये प्लस Q है, लेंथ आपने पहले की तरह ज्यूम कर लिया, यहाँ पर 12 ही है, ये इसका सेंटर है O, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो होगा ये लाई करेगा। तो पॉइंट P अब जो है वहाँ पर नहीं है इसके एक्सिस के अलोंग, अब जो है इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे। ओके, और पहले की तरह हमने इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से पॉइंट P की R मान ली है। ये चूँकि मिड पॉइंट है तो L ये हो जाएगा और ये L हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका Z है, तो ये भी आपका Z ही होगा। ये एंगल आप मान लीजिए थीटा है। ओके, तो यहाँ से Z की वैल्यू कितनी आएगी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी R² प्लस L², और यू कैन से Z विल बी इक्वल टू R² प्लस L² स्क्वायर रूट, और यू कैन से Z इज इक्वल टू R² प्लस L² का 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ है इसकी। ओके, एक और पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी मुझे इसमें, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इट विल बी L upon Z. Remember this. Okay, I am going to use it.
So let us just forward with the expression. Okay, again we have two charges, minus q and plus q. We have to calculate the electric field due to minus q at point P and due to plus q at point P, and we have to take the resultant of that field. यानी कि इन दोनों की वजह से जो फील्ड होगा हमें उनका रिजल्टेंट चाहिए. तो माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट पी यहाँ पर लोकेटेड है, जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा इसकी वजह से. E1 टुवर्ड्स द चार्ज होता है, मैंने बार बार ये चीज़ बताई. ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर वो आउटवर्ड होगा. ओके, लेट जस्ट टेक मैं इसको E1 कह देता हूँ, इसको E2 कह देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पिछली बार E1 प्लस क्यू की वजह से लिया था और E2 जो है वो माइनस क्यू की वजह से लिया था. तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ E2 और इसको कह देता हूँ E1. ओके, तो अब आपके दो वेक्टर हैं यहाँ पर, E1 है और E2 है. इन दोनों वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा. ओके, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये आपका E1 है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस डायरेक्शन में, तो चूँकि ये एंगल थीटा है तो ये नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा. इसको ज़रा मैं क्लियरली बना दूँ और आपके लिए. एक बड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए. और ये एंगल थीटा हमने एज्यूम किया था, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. इधर आपका E1 है, E1 है. इधर आपका E2 है. मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर करूँ, इस लाइन के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचूँ, या आप यूँ कह लीजिए, तो ये एंगल भी थीटा ही बनाएगा. तो क्योंकि ये एंगल थीटा है सिंपल ज्योमेट्री से. अब E2 को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, इफ आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस कंपोनेंट, जैसे कि वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, इट विल बी E1 साइन थीटा एंड इट विल बी अलोंग दिस E1 कॉस थीटा. इस तरह से जब मैं E2 को रिजॉल्व करूँगा तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, E2 साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E2 कॉस थीटा. तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये एग्जैक्टली अपोजिट है. ये पूरा परपेंडिकुलर नहीं बना है, ये पूरा परपेंडिकुलर इसको बनाएंगे तो ये सी के अलोंग आएगा. E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एग्जैक्टली अपोजिट है. तो अगर E1 E2 इक्वल हो जाए, इफ़ E1 एंड इक्वल टू E2 इन मैग्नीट्यूड, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इसी तरह से ये दोनों पैरेलल हैं इस डायरेक्शन में, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा. तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके आएगा. अगर ये दोनों इक्वल भी हो गए तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके जीरो बचेगा, तो फिर ये दोनों मैटर ही नहीं करेंगे. आपके पास जो मैटर करेगा वो करेगा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा. पहले ये देख लेंगे हम कि क्या E1 और E2 इक्वल हैं, और ये इक्वल होते हैं. आप देखिए कैसे, E1 जो है दिस प्लस Q की वजह से है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी वो Z है. E2 जो है वो माइनस Q की वजह से है यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस जो है वो भी कितनी है, वो भी Z है. साइन हम लेते नहीं है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की वजह से सेम ही आएगा मैग्नीट्यूड में. E1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Z स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मैंने Z ली है. इसी तरह से E2 जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Z स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया. इसका मतलब ये है, ये कंडीशन आपकी मीट होगी जो आप चाह रहे थे. E1 इज इक्वल टू E2 हो गया, दैट मीन्स E1 साइन थीटा, थीटा तो पहले साइन थीटा तो दोनों जगह ऑलरेडी है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. अब जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा बचेगा. देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1, अब दो देखें आप, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा. E1 और E2 इक्वल है तो आप इसको E1 कॉस थीटा और E2 को भी आप E1 कॉस थीटा ही लिख सकते हैं. तो यह हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू, E1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी है, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू वॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Z स्क्वायर. और कॉस थीटा की वैल्यू मैं पहले कैलकुलेट करके रख चुका था, इट वॉज L अपॉन
z। तो e कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 1/4πε0 2 Q, 2 जहाँ मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ जाके L/z² और z³ हो गया। इससे मैं अगले पेज पर ले जाता हूँ यहाँ से आगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। सो E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 2QL/z³। ओके, यहाँ तक हम आ गए थे। अब 1/4πε0 Q, 2 को मैं 2 × L भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई Z को लिख सकते हैं आप R² + L² टू द पावर 1/2। ये Z था और इसकी पावर कितनी है बाहर, 3 है, ये पावर 3 है। Z की वैल्यू मैंने निकाली है पहले, तो ये हो गया 1/4πε0, ये Q × 2L आपका P हो गया डायपोल मोमेंट, और ये हो जाएगा आपका R² + L² टू द पावर 3/2। 1/2 अंदर है और 3 जो है बाहर है आपका। पहले वाली क्राइटेरिया यहाँ भी मीट हो रहा है, R इज़ मच ग्रेटर देन L। ये हम लेके चलते हैं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये होता है। ये एजम्पशन जो है कोई इनवैलिड नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ जब आप जाएंगे, जब आप प्रैक्टिकल डायपोल ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होती है। तो ये आप ये समझिए कि अपने हम डेरिवेशन को आसान करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, आसान नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही चीज़ फुलफिल होती है। तो अगर ये क्राइटेरिया होगा तो जाहिर बात है L² कैन बी निगलेक्टेड इन कंपेरिजन ऑफ R², देयरफॉर E विल बी रिटन एज 1/4πε0 P/R² टू द पावर 3/2। अब ये स्क्वायर है और इधर पे 1/2 है, तो स्क्वायर और 2 जो कैंसिल हो जाएगा, पावर बच जाएंगे यहाँ पर कितनी, E = 1/4πε0 P/R³। अगर आप देखें इसको, ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन, 1/4πε0 P/R³। दैट मीन्स एक्सियल पोजीशन पे कितना आया था, उसमें सिर्फ ये फ़र्क था कि यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन का हमेशा ट्वाइस होता है। ओके, अब इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल आते ही आज करवाया था, 3 पॉइंट थे यहाँ पर, मैंने लिया था Q1 Q2, इसका साइड था 0.1 0.1 0.1, एक पॉइंट C यहाँ पर था, पॉइंट A यहाँ पर था, उसको छोड़ दीजिए अभी, और एक पॉइंट B था यहाँ पर और 0.05 मीटर था वो। अगर आप देखें ये दोनों चार्जेस इक्वल थे, ये 10⁻⁻8 था और ये -10⁸ था, तो ये डाइपोल ही बन रहा है। अब तब तक हमें डाइपोल के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि वो तो डाइपोल का न्यूमेरिकल था एक्चुअली, और आपको जो है वैसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। पॉइंट B जो है इसकी एक्सियल पोजीशन पे है और पॉइंट C जो है वो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो आप इन दोनों पॉइंट पे ज़रा इन फॉर्मूलों से निकाल के देखिएगा जो मैंने दोनों के लिए करके देखे हैं यहाँ पर। दैट विल बी योर होमवर्क। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर नाउ।